Good morning, everyone. Am I audible, guys? Yes, am I audible? Okay. And I guess screen is also visible. So we'll start with the lecture. I know already lecture has delayed because of some network issue. I won't be able to join the lecture with my mobile phone, and because of that थोड़ा टाइम लग गया. Okay, so anyways we'll start with our lecture now. In today's lecture, what we are going to do, as you remember, in last lecture we have completed the first ribbon, that is about home ribbon. Okay, now we today what we will do is we will start with the next one, that is about insert ribbon. ठीक है. सो इंसर्ट रिबन आज हम कंप्लीट करेंगे. वी विल ट्राई टू सी वॉट एवर फीचर्स आर प्रोवाइडेड इन दैट इंसर्ट ribbon. So just let me do some of the adjustment. Okay, ठीक है. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो अभी रिबन दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, on top of the center, as you can see, that is about the home ribbon which we have seen earlier in last lecture. Now today we will talk about this particular ribbon, that is insert. So I will click on this insert, and now you can see various groups are there. अब कौन से ग्रुप्स है? सो द ग्रुप्स आर स्टार्टिंग विद द फ्रॉम लेफ्ट साइड, left corner. As you can see, the pages group is there, then tables group is there, even illustration group is there, links group is there, then header and footer group is there, text group is there, and the last one, that is symbols group is there. So through these particular groups, insert ribbon provides us many features. So we will talk about each and every group, and then we will try to understand what these particular groups and these features are all about. Okay, so let's get started with the insert ribbon. The first group which we are going to talk about, that is about the pages group. Now in pages group, as you can see, three components are there, three features are there. The first one, that is about the cover page. Now as we all know, what do you mean by cover page? So if you want to prepare a particular document, ठीक है, एक आपको एक पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाना है. सपोज आपका थर्ड ईयर में आपको ये समझ में आ जाएगा दैट फॉर योर प्रोजेक्ट पर्पज यू नीड टू सबमिट वन केस स्टडी. एंड केस स्टडी जब सबमिट करते हैं तो उसके लिए वी प्रिपेयर वन ब्लैक बुक. ओके, सो छोड़ो छोड़ो वो भी छोड़ दो. चलो ब्लैक बुक के बारे में भी अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो वी विल टेक अ एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक. सो टेक्स्ट बुक जब हम रेफ़र करते हैं, देखते हैं, तो इन दैट टेक्स्ट बुक चैप्टर्स एंड यूनिट्स वगैरह जो है वो तो स्टार्ट होते ही है, बट उसके पहले एक कवरिंग पेज होता है कि बाबा इसके अंदर क्या है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट का बुक है, इसके रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती है. सो टू add the cover to our pages or our document, we can use this particular cover page. तो अगर आपको कुछ हेडिंग देना है या नाम देना है उस डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, एक डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लो, से 10 पेजेस का, 20 पेजेस का, 100 पेजेस का, एंड देन फिर उसके लिए इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड वन कवर पेज, सो बेसिकली आप क्या करते हो, वहाँ पे स्टाइलिश एक कवर पेज बनाते हो या फिर एक हेडिंग बनाते हो, एंड दैट पर्टिकुलर हेडिंग और दैट पर्टिकुलर कवर विल टेल इटसेल्फ दैट कि द डॉक्यूमेंट विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इट इज़, ऑन व्हाट बेसिस दैट डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड. So that particular thing will give you the idea. So that is the importance of cover page. Now basically adding a cover page is just that what you need to do is, यहाँ पे क्लिक कर दो. देखो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे कवर पेज के, कि कौन से टाइप में आपको कवर पेज ऐड करना है. सम what we can templates, they have given built-in templates. So whatever template you want, you can use those particular templates. So for example, अब मुझे यहाँ पे चलो ये एक template यूज़ करना है. ओके,
सो आई विल जस्ट यूज़ दिस टेम्पलेट. नाउ यू कैन सी, अब ये एक टेम्पलेट आ गया है. यहाँ पे आप जो भी एडिटिंग करना है एडिटिंग करो. चलो मैं यहाँ पे 2021 डाल देता हूँ. टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट चलो SY बैफ, एंड आगे मैं डालता हूँ IT. ठीक है, एंड बस ख़त्म हो गया. सो दिस विल बी यूअर कवर पेज. ओके, एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ आपका नाम वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो, सो दैट इट विल बी like this particular document is prepared by you. So adding a cover to your document is the importance of cover page. And now you can see, just मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था, वो ऊपर सबसे पहले ऐड हो जाता है वो. एंड नीचे आप देख सकते हो अपना जो भी डेटा था वो डेटा. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड अ कवर पेज टू योर डॉक्यूमेंट. आई होप आपको ये समझा रहेगा. यस. Now we'll move to the next one, that is about blank pages. If you want to add the blank pages to your page anywhere in your document, then you can use the next one, that is about the blank pages. Okay, so let me go to the our page first. चलो मैं इस पेज पे आ गया अभी. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ब्लैंक पेज ऐड करना है. नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आप नीचे देखो, ये जो नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिखाई देगा. हाउ मेनी पेजेस आर देयर. उस पेज में कितने वर्ड्स है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा. एंड विच लैंग्वेज यू आर यूजिंग, तो वी आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज. कौन सा, तो यूके का इंग्लिश लैंग्वेज वी आर यूजिंग. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ये मेंटेन किया गया है. अगर आपको चेंजेस करने तो यू कैन गो टू द सेटिंग्स एंड यू कैन डू द चेंजेस इफ़ यू वांट. इवन अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी कुछ टैब्स है. सम व्हाट वी कैन से, जैसे हमने ऊपर देखा था क्विक एक्सेस टूल बार जैसे था, वैसे ही है यहाँ पे. तो प्रिंट लेआउट अगर आपको देखना है तो आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो फुल स्क्रीन रीडिंग अगर आपको चाहिए. नाउ यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ एक पेज दिख रहा है अलॉन्ग विद द डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ MS वर्ड. सो इफ़ यू वांट ओनली दैट पर्टिकुलर पेज टू रीड फुल स्क्रीन पे, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो. ये देखो आपको फुल स्क्रीन आ जाएगा. ठीक है, इसको नहीं चाहिए एस्केप कर दो. देन यहाँ पे आप देख सकते हो वेब लेआउट इज़ ऑल्सो देयर, आउटलाइन इज़ ऑल्सो देयर, ड्राफ्ट इज़ ऑल्सो देयर, देन प्रिंट लेआउट इज़ देयर, कि प्रिंटिंग के वक्त ये पेज कैसे दिखेगा. तो यू कैन सी हियर प्रिंट लेआउट. ओके, एंड देन यहाँ पे जूम आउट और जूम इन करने के लिए ऑप्शन इज़ गिवन. तो दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो वी कैन यूज़, ये भी बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैंक पेजेस. सो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, जहाँ पे भी आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो ब्लैंक पेज अपना अपने आप ऐड हो जाएगा. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे, अब मैंने कहाँ पे रखा था कर्सर, बीच में रखा था. जस्ट मैं फिर से एक बार शो करता हूँ आपको. यहाँ पे मैंने रखा था, तो इसके बाद वो ब्लैंक पेज करेगा. इफ़ डॉक्यूमेंट के एंड में रखोगे तो इसके बाद आपका एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा. सो नाउ यू कैन सी, देखो नीचे अभी एक ब्लैंक पेज आ गया. सो ये कंटेंट है अपना, ये एक ब्लैंक पेज हमने और एक ऐड कर दिया. अगेन इफ़ यू वांट टू ऐड वन ब्लैंक पेज, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो अभी देखो 4 पेजेस हो गए अपने डॉक्यूमेंट में. सो जितने नंबर ऑफ ब्लैंक पेजेस यू वांट उतने आप ब्लैंक पेजेस ऐड कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर. गाइज आई हैव सम प्रॉब्लम विथ माय लैपटॉप, जस्ट वेट. Okay, so after the blank page, next one is about the page break. Now this particular feature is used to provide the, what we can say, insert the page break. Now just wait guys, guys wait for a minute.
ओके टिल देन वी विल टॉक अबाउट, क्योंकि अभी मैंने लैपटॉप मेरा रिस्टार्ट हो चुका है, सो आई वोंट बी एबल टू शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल जब तक ये स्टार्ट नहीं होता. So just we will talk about some of the features of this insert ribbon. I know I need to show those particular features to you, demonstrate you so that you will understand it. So just give me some 5 minutes. Please wait. Meanwhile, we will talk about the different groups, and then I will show you the demonstration. So we were talking about the page group. So page break is definitely used to insert a page break. Now, if at the end of current page, if you want to move the next page, that is what we can call it as कि एक पेज है आपका, एक करंट पेज पे आपका कर्सर है, एंड जो नेक्स्ट पेज है वो आपको कुछ पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे मूव करना है. सो वहाँ पे आप पेज ब्रेक डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपने एक पूरे पेज पे कुछ पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, 2-3 पैराग्राफ्स है, एंड इफ़ यू वांट कि उसमें से एक पैराग्राफ है जो वो नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए. सो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक जो है ये फीचर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, so that that particular part will be moved to the next page directly. So these are the three features provided under the page group. Next one is about table group. Now table group, that is definitely table group में आप क्या कर सकते हो, तो टेबल बना सकते हो. सो इफ़ यू वांट टू ऐड अ टेबल, अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में कुछ डेटा बनाना है तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो. नाउ द टेबल इज़ बेसिकली अ ग्रेट वे to organize the information within your document. So whatever thing like data, if you want to maintain a particular data, then you will be able to use that particular, or you will be able to store that particular data using this table feature. So I will show you how you can insert the table, because as soon as you click on that table field or table feature, you will be able to display row and column as per your requirement. So first you should know ki what kind of data you are inserting, and depending on that particular thing only how many rows will be there, how many columns will be there, that particular thing you will pre-decide, and then you will create the table. Okay, after that you can see next group is about illustration group. Now illustration group has some 5 to 6 important feature. As you can see, the first one, that is about insert picture. Now insert picture is basically used to, as a name suggests, insert picture मतलब क्या है, अगर कोई फोटो आपको आपके पेज पे लाना है, आपके पेज पे आपको डिस्प्ले करना है, सो फॉर दैट पर्पज ओनली वी आर गोइंग टू यूज दिस इंसर्ट पिक्चर का टैब. So first thing is to insert a picture on your document, to place a picture on your document, it is necessary that that particular picture should be there in your device. आपके डिवाइस पे होना चाहिए वो, ठीक है, आपके डिवाइस पे होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज और इंसर्ट दैट पिक्चर ऑन टू योर पेज. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग विल प्रोवाइड यू व्हाट वी कैन से अ ग्रेट इम्प्रेशन with stylish. If you want to क्रिएट योर डॉक्यूमेंट, मतलब स्टाइल्स वगैरह ऐड करने हैं, या फिर अट्रैक्टिव पेज अगर आपको बनाना है, सम इंफॉर्मेटिव पेज इफ यू आर क्रिएटिंग. सो दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज इंसर्टिंग इमेज or picture, will add some creativity to your page, attractiveness to your page. So this will definitely help you to create attractive documents. Okay, next one is, that is about some online pictures. So if you want to use some of the online pictures, या if कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटोज़ अगर आपके डिवाइसेस में नहीं है, एंड डायरेक्टली इफ़ यू वांट टू यूज़ सम ऑफ द ऑनलाइन पिक्चर्स, देन यू कैन फाइंड एंड इंसर्ट these pictures from variety of online sources. So just the thing is here, no, screen is not visible, my laptop is restarted. Okay, so screen is not visible, don't worry, just wait for some time. I have some issues with my laptop, so just we are taking the lecture, wait for 5 minutes.
ओके, इंस्टेड व्हाट वी विल डू, वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स, अदरवाइज आपको वो समझेगा भी नहीं प्रॉपरली, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स है फिर से वही ग्रुप्स हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते बैठेंगे. सो इंस्टेड वी विल वेट, जस्ट लेट मी स्टार्ट विथ माई लैपटॉप and then we will continue with the lecture. Okay, just wait guys.
ओके, आई होप अभी स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली सबको. ओके, so we were seeing this insert ribbon. Just let me click on the insert ribbon. Okay, so first group we have covered till now, that is pages group. Now we will see about the table group. Now as you can see, this is the table group. Okay, now in this table group, we need to click on this table feature, as you can see, and by default some of the rows and some of the columns will be available. So what you can do, guys, whatever data you want to insert as per your requirement, you can just select. So for example, I want to say 5 columns and some 5 rows on my pages, that is to insert my data. So that particular thing I can directly click on this particular tab, this feature, and I can directly use this particular setup to insert a table directly onto my page. Okay, so this is how we can create our table on the page. Similarly, as you can see, यहाँ पे भी एक option है आपको insert table का. So if you willing to use number of columns and number of rows on your own, जो by default दिया है वहाँ से अगर आपको नहीं करना है तो what you can do, यहाँ पे आप डाल सकते हो. सो इफ़ आई वांट से सम ऑफ द कॉलम्स, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डालने हैं वो आप मैनेज कर सकते हो. इफ़ आई वांट टू इंक्रीज से नंबर ऑफ रोज, से 10 नंबर ऑफ रोज आई वांट. सो व्हाट आई कैन डू, जस्ट यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आपको चाहिए वो आप ऐड कर दो एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन. नाउ यू कैन सी हियर. Okay, even some of the table styles are also given. So as you can see, if you want to put up a header or total number of rows or banded row, so those particular things you can get here. Even some of the styles are there, as you can see. ये देखो, this is the normal table grid. These particular styles you can use directly. Now you can see this one. I will just show you one table. एक टेबल दिखा देता हूँ आपको. सो जस्ट लेट मी. ओके, सो इसको चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आई कैन चेंज सम ऑफ द टेबल स्टाइल्स. जस्ट वेट, I need to go to the table properties and from here I can choose whatever I want. So कैसे आपको टेबल की सेल्स चाहिए या बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स जो भी आपको चाहिए, ये देखो आपको बॉक्स बॉर्डर चाहिए, ऑल साइड बॉर्डर चाहिए, तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन यूज़. शेडिंग में कलर्स, so some of the colors if you want you can add those particular colors. स्टाइल्स में देख सकते हो आप, अलग अलग स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो. सो इन दिस रिगार्ड यू कैन क्रिएट योर ओन टेबल. सो नाउ यू कैन सी, ये देखो कुछ अलग अगर स्टाइल्स आपको यूज़ करने हैं, यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग. मल्टीपल फीचर्स आर अवेलेबल. So just keep in mind, if you want to insert a table inside a document, so you need to use this particular tab, and once you created this tab, then डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू इज़ कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं टेबल के प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप जो भी टेबल्स में जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप इजीली कर सकते हो. ओके, सो जस्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. इसके प्रॉपर्टी में जाना है, ये देखो इसका प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टीज़, इसमें जाके आप बाकी के जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप कर सकते हो. ठीक है. So this is what the table feature is all about. Next one we will be talking about the next group, that is about the illustration. So for that we will go to the next page, and now the first part, that is to insert the picture. Okay, so if you want to insert the picture, just you need to click and then जो भी picture image आपको insert करना है आपके document पे, whatever image you have in your device, so just you can see here one picture is there. तो इसको अगर मुझे insert करना है तो देखो, in this regard I can insert the picture. Okay, now इसके लिए भी बहुत सारे options available है, formatting options.
सो एज यू कैन सी, अगर आपको इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रीकलर अगर आपको करना है, दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन डू। इवन यू कैन चेंज द पिक्चर और कंप्रेस द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर्स के लिए कुछ स्टाइल्स दिए, ये देखो पिक्चर अगर आपको फ्रेमिंग करना है तो सिंपल फ्रेम इज़ गिवन। ये देखो, आप देखो चेंजेस देखो, जैसे जैसे मैं वो फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे चेंजेस दिखेंगे आपको। नाउ यू कैन सी, ये देखो फ्रेम के अंदर अगर आपको पिक्चर डालना है तो वो भी आप कर सकते हो। विदाउट फ्रेम वाले ऑप्शंस आर देयर। ये देखो सॉफ्ट एज रेक्टेंगल्स, देन डार्क वाला है इमेज, देन दिस वन सर्कुलर शेप में चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। सो मल्टीपल फीचर्स आर अवेलेबल। ओके, सो एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये देखो अगर टिल्ट करना है मुझे थोड़ा सा तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखो, so multiple formatting options are available. Even if you want any of the picture in particular shape, so that particular part also you can do. तो basic shape choose करके फिर उसके अंदर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो जो भी पिक्चर लिया है उस पिक्चर को मुझे अगर किसी इसमें किसी शेप के अंदर ये करना है तो दैट पर्टिकुलर थिंग आई कैन डू यूजिंग दिस टैब। देन पिक्चर बॉर्डर इफ़ यू वांट टू सेट तो मैं बॉर्डर सेट कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ दूसरा बॉर्डर चाहिए, ये देखो। ओके, पिक्चर इफ़ेक्ट्स, अगर इफ़ेक्ट्स आपको शो करने, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर दोज पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, ये देखो रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, देन 3D रोटेशन। तो 3D रोटेशन करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। ये देखो, so everything is available, just you need to explore those particular thing. now इतना सब कुछ तो आपको है नहीं अभी आपके सिलेबस के हिसाब से। just the thing is how to insert the picture, इतना ही है। बट इसमें और भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। इवन टेक्स्ट रैपिंग आप कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे ये साइज़ वाला जो टैब दिख रहा है उधर से आप हाइट और उसका विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। बट नॉर्मली ये हम लोग यूज़ नहीं करते बिकॉज यहाँ से ही डायरेक्टली आप सेट कर सकते हो वॉट एवर साइज़ यू वांट, है ना। उसको ड्रैग करके ही आप जितना साइज़ चाहिए उतना साइज़ आप चूज़ कर सकते हो। सो इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड यू कैन यूज़ दिस इंसर्ट वाला पिक्चर option, the first part. Then next one is clip art. As you can see, by using this particular thing you can insert clip art into the document, including any of the drawings or movies or sounds or stock photography. So ये भी आप directly use कर सकते हो। just you need to click and you need to search for that particular thing। ठीक है, ऑनलाइन भी अगर आपको क्लिप आर्ट किसी का यूज़ करना है तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन क्लिक हियर एंड सर्च ऑनलाइन। तो जो भी आप ऑनलाइन सर्च करोगे वो आप यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ रिकमेंडेड दैट व्हाट यू कैन डू गाइज, ये क्लिप आर्ट वगैरह डायरेक्टली ऑनलाइन यूज़ करने से अच्छा व्हाट यू कैन डू, पहले ऑनलाइन सर्च कर दो एंड उसको क्या करो, उसको आपके डिवाइस पे स्टोर कर दो। सो इट विल बी मेक यू ईजियर टू इम्प्लीमेंट सच पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, देन रिगार्डिंग द शेप्स, अब शेप्स भी बहुत सारे हैं अवेलेबल, तो वो शेप्स भी जस्ट लेट मी शो यू द शेप्स। चलो ये तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। वी विल मूव टू द शेप। इफ़ यू वांट टू ऐड सम ऑफ द शेप्स इन आवर डॉक्यूमेंट, तो वो शेप्स, बहुत सारे शेप्स यहाँ पे दिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सो एनी ऑफ द शेप यू इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर शेप। जस्ट आपको क्लिक करना है एंड वो वहाँ पे ड्रॉ करना है, एज यू कैन सी। यस, सो अब शेप के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग में। सो एज यू कैन सी, अगर आपको शेप में कुछ कलर डालना है, शेप को फिल करना है, उसका आउटलाइन चेंज करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आई कैन चेंज द आउटलाइन ऑफ द शेप। इफ़ आई वांट टू फिल, अगर मुझे कलर डालना है तो कलर भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। यस, इफ़ आई वांट सम शैडो इफ़ेक्ट्स तो मैं शैडो इफ़ेक्ट भी डाल सकता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये देखो शैडो इफ़ेक्ट आ गया। अगर मुझे 3D इफ़ेक्ट डालना है तो 3D इफ़ेक्ट ये देखो। यस, तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़, जस्ट वेट, एक शेप। यस, सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मुझे चेंजेस करने हैं थोड़े बहुत 3D इफ़ेक्ट में, ये देखो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये 3D इफ़ेक्ट है या नहीं है।
है ना। सो डायरेक्शंस आप चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे। आई होप आप देख सकते हो ये सब कुछ। ये देखो, सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़। इवन पोजीशनिंग आप ये कर सकते हो कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर इमेज आपको चाहिए। देन सम ऑफ द स्टाइल्स आर गिवन एज यू कैन सी। ये देखो, दीज मैनी स्टाइल्स आर अवेलेबल। सो वॉट एवर यू वॉन्ट। देखो आपके पेज के आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो कंटेंट आप डालने वाले हो वो कंटेंट कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, इसीलिए ये इंसर्ट एंड फॉर्मेट टैब इज़ देयर। अदरवाइज इसका कुछ भी यूज़ नहीं है एज सच। ठीक है। तो जितना आप अट्रैक्टिव आपका डॉक्यूमेंट बनाओगे उतना ही फिर वो वेल रीडेबल रहेगा। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट easily because you have created that particular document and well formatted document is there. So if well formatted document is there then only बहुत सारे लोग देखो, आप भी अगर कुछ पढ़ना है आप एक टेक्स्ट बुक अगर आप लेते हो, कोई भी बुक अगर आप लेते हो तो उसमें अगर सब कुछ वेल फॉर्मेटेड रहेगा ना तो आपको भी एंजॉय करते हो रीडिंग के वक्त, या फिर इजीली आपको समझ में भी आता है। सो these are the features which we use to create the attractive document। अदरवाइज ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। सो आफ्टर दिस शेप्स के बाद स्मार्ट आर्ट इज़ ऑल्सो देयर। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मली हम लोग पीपीटी में भी यूज़ करते हैं बहुत सारे जगह पे। नाउ द थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू ऐड सम ऑफ द स्टेप्स, एक कोई प्रोसेस आप डिस्कस कर रहे हो एंड उसके लिए कुछ आपको ट्री डायग्राम बनाना है या सम स्टेप्स देने हैं, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट में व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक देते हैं, उसके नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग ग्राफिक्स दे हैव गिवन, सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द ग्राफिक। ये देखो, अगर ये ग्राफिक यूज़ करोगे आप तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। तो जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है यहाँ पे आप जस्ट लेट मी रिमूव दिस। सो यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करोगे 1 नंबर, देन यहाँ पे 2 नंबर, देन 3 नंबर एंड देन वॉट एवर कंटेंट यू वांट, तो यहाँ पे आप वो टाइप करो कंटेंट। सो दिस विल जस्ट क्रिएट व्हाट वी कैन से स्टाइलिश डॉक्यूमेंट। अगर आपको क्रिएट करना है ना देन ओनली वी यूज़ दिस टाइप ऑफ टाइप्स। ओके। इवन एज यू कैन सी नाउ, और भी मैं आपको कुछ शेप्स दिखा सकता हूँ स्मार्ट आर्ट के। यहाँ पे देखो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, साइकिल्स भी अवेलेबल है, तो दिस टाइप ऑफ साइकिल्स यू कैन यूज़। ये देखो, अगर ऐसे कुछ आपको यूज़ करना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ऊपर हर बार आप देखो जो भी आप ये स्मार्ट आर्ट या शेप्स या चार्ट आप यूज़ करोगे ना तो उसके लिए डिज़ाइनिंग पैटर्न एंड फॉर्मेटिंग फीचर इज़ अवेलेबल। ठीक है। तो आपको फॉर एग्जांपल ये चाहिए इंस्टेड, या फिर ऐसे वाला आपको चाहिए। ठीक है। तो एनी ऑफ द कलर, एनी ऑफ द फॉर्मेट यू कैन यूज़ एंड इवन यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। ये देखो मल्टीपल कलर्स आर अवेलेबल, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर कलर। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन हियर, दैट इज चेंज कलर्स। ठीक है। देन इफ़ यू वांट टू से ऐड सम ऑफ द, एक मिनट, जस्ट लेट मी गो टू द स्मार्ट आर्ट अगेन। देन रिलेशनशिप्स अगर आपको शो करने हैं या पिरामिड आपको शो करना है, ये भी आपने देखा रहेगा बहुत सारे आपके बुक्स में, आपने देखा रहेगा कि ऐसे पिरामिड्स एंड ऑल ऐसे कंटेंट दिखाते हैं, है ना। तो ये भी अगर आपको ऐड करना है तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन ऐड इजीली, जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है तो यू कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग। ये देखो अलग अलग कलर्स। यस। सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स व्हाट यू विल डू, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्मार्ट आर्ट क्यों बोला है इसको, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट में कंटेंट है वो अगर आपको और अच्छे से दिखाना है, ठीक है। नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज, ये अपना ये ह्यूमन का एक साइकोलॉजी होता है, दैट इज़ कि कोई भी एक कंटेंट होता है, जस्ट आप उसको रीड करोगे तो रट्टा मारने जैसा आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। बट इसी के जगह पे अगर आपको कोई डायग्राम दिखाया जाए, ठीक है, या कुछ चार्ट अगर आपको दिखाया जाए तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर दोज पर्टिकुलर थिंग्स,
है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा ना तो वो आपको अच्छे से याद रहता है, एंड फॉर दैट रीजन ओनली वी यूज सच पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, सो ये जो इलस्ट्रेशन ग्रुप जो है ये बेसिकली हम लोग यूज इसीलिए करते हैं सो दैट वी कैन illustrate whatever content we have written inside the document। ओके, उसको वेल प्रेजेंट करने के लिए ही हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, इसके साथ और भी एक है, दैट इज़ अबाउट चार्ट। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर चार्ट इन योर चार्ट तो आपको मालूम रहेगा, मल्टीपल चार्ट टाइप्स दे हैव गिवन, दैट इज़ कॉलम्स आर देयर, दैट इज़ बार चार्ट इज़ अवेलेबल, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट इज अवेलेबल, बार चार्ट इज अवेलेबल। देखो मल्टीपल चार्ट्स आर गिवन हियर, सो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिलेक्ट एनी ऑफ द चार्ट। आप चार्ट सिलेक्ट कर लो, सपोज पाई चार्ट, ये देखो पाई चार्ट के ऑप्शंस। अब यहाँ पे एक चार्ट सिर्फ सिलेक्ट कर लो, आपको बाकी का पूरा फॉर्मेटिंग के इसमें आ जाएगा। सो जस्ट आई विल क्लिक ऑन द पाई चार्ट एंड नाउ यू कैन सी वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट टू इंसर्ट हियर, ठीक है, उसका डेटा आप यहाँ से यहाँ पे डालोगे। ओके, सो देखो ये चार्टिंग है ना, नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल के थ्रू, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तो एक्सेल का जो चैप्टर है वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। तो एक्सेल पे टेबल जो बनाते हो आप, उसी के ऊपर वी प्रिपेयर द चार्ट। ठीक है, सो अगर चार्ट आपने लिया भी तो भी आपको करना क्या है, जस्ट वॉट एवर कंटेंट यू वांट उस हिसाब से आप कंटेंट डाल दो। सो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने 11 डाल दिया। ओके, तो उस हिसाब से वो चेंज होगा। देखो यहाँ पे मैंने 5 डाला, चेक करो, यहाँ पे मैंने डाल दिया 22। देखो, तो मैं जैसे यहाँ पे कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, डेटा चेंज कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा जो चार्ट है वो चार्ट का जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज होते जा रहा है। सो द थिंग इज़ हियर, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट ये जो है ये नॉर्मली हम लोग एक्सेल के थ्रू यूज़ करते हैं। एक्सेल में हम डेटा इंसर्ट करते हैं एंड उसके ऊपर से हम चार्ट बनाते हैं। जस्ट लेट मी शो यू अ पर्टिकुलर थिंग। येस, दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय टेबल। अब इस टेबल को मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, एंड मैं ना एक्सेल पे मैं उसको यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं उसको ये कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, इसको मैं यूज़ करके ये जो कंटेंट है इस कंटेंट को मैं यूज़ करके यहाँ पे अभी आप देखोगे सेम थिंग इज़ देयर, दैट इज़ इफ़ आई वांट टू ऐड चार्ट, ये देखो चार्ट बन गया। तो एक्सेल में नॉर्मली हम लोग चार्ट यूज़ करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, चार्ट में क्या क्या हमने यूज़ किया है, कौन किसको रिप्रेजेंट किया है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ हियर। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द चार्ट टाइप तो वो भी आप डायरेक्टली सेम चीज़ है क्या, जो वर्ड में अवेलेबल है वही सब एक्सेल में अवेलेबल है। सो इफ़ आई वांट इंस्टेड कॉलम वाला चार्ट, तो नाउ यू कैन सी, ये देखो कॉलम का चार्ट आ गया। अगेन इफ़ आई वांट टू ऐड सम अदर चार्ट, ये देखो लाइन का अगर मुझे ऐड करना है तो आई कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग। जस्ट यू नीड टू इंसर्ट द डेटा, बाकी आपको कुछ भी करना नहीं, जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स। ये अगर ट्रायंगुलर वाला जो है कोनिकल, तो वो अगर करना है, देखो ऐसे अलग अलग चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, एंड वही आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो इनटू योर वर्ड। बेसिकली वर्ड में हम लोग ज़्यादातर चार्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम एक्सेल में डेटा डालते हैं एंड एक्सेल में चार्ट क्रिएट करते हैं। सो दीज पर्टिकुलर चार्ट्स आर अवेलेबल। ओके, just to show you different chart types, so multiple chart types are available. Using those particular charts you can create your document and you can insert the chart inside your document. Okay, now the next part is chart हो गया। उसके बाद है links। लिंक्स में अगर आप जाओगे तो यू कैन सी हाइपर लिंक इफ़ यू वांट टू ऐड, या बुक मार्क इफ़ यू वांट टू ऐड, तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन ऐड हियर। सो जस्ट लेट मी गो एंड यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे मुझे कुछ लिंक डालना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने समझो कुछ टाइप किया www.google.com, ठीक है, मैंने टाइप किया, देखो ये अपने आप हाइपर लिंक हो गया बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड। सो हाइपर लिंक अगर आपको यूज़ करना है तो दैट पर्टिकुलर हाइपर लिंक किसी भी इसको टेक्स्ट को अगर आपको हाइपर लिंक में ऐड करना है,
सो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन ऐड. सो जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे आप एंड यहाँ पे देखो ये हाइपर लिंक है. सो कंट्रोल क्लिक अगर आप करोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर पेज. आई विल शो यू. कंट्रोल करके ये देखो हैंड आ रहा है ना यहाँ पे. ओके. सो ये हैंड का मतलब इसके ऊपर क्लिक करोगे ना अभी आप, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे गूगल के पेज पे. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र रहेगा आपका वो ब्राउज़र उस पेज को ओपन कर देगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस हाइपर लिंक वाला ऑप्शन. देन नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ अबाउट हाइपर लिंक के बाद यहाँ पे बुकमार्क्स है. तो बुकमार्क भी आप कर सकते हो किसी भी साइट्स को जिसको आपको यूज़ करना है कंटिन्यूसली, या फिर नेक्स्ट टाइम इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग तो यू कैन गो एंड यूज़ दिस पर्टिकुलर बुकमार्क टैब. ठीक है. सो ये लिंक वाला ऑप्शन तो ज़्यादातर हमको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जस्ट द थिंग इज़ जब आप एंड में कुछ रेफरेंसेस देते हो कि कहाँ से डेटा आपने लिया है क्या किया है, तो उसके लिए नॉर्मली वी यूज़ दिस लिंक टैब. नेक्स्ट टैब इज़ इम्पॉर्टेंट एज वी हैव ऑलरेडी सीन हेडर एंड फुटर के बारे में. सो दिस विल हेल्प यू टू ऐड द हेडर फुटर और पेज नंबर टू योर पेज. So basically adding a header will help you to repeat content at the top of every page. So they are useful for showing some of the information like title क्या है, author क्या है, and page number भी if you want to add that particular thing you can do. Even about the footer, the footer helps you to repeat content at the bottom of every page. So just I will show you header and footer. मैं आपको show कर देता हूँ कि अगर मुझे add करना है तो just I will click on the header वाला ऑप्शन एंड यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टेम्पलेट्स दे हैव गिवन. नॉट ओनली दिस, ये देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं उन्होंने. सो वॉट एवर टेम्पलेट्स यू वांट यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट. ओके. सो द थिंग इज़ कि ये हेडर हम लोग ना टाइटल के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं. सो नाउ एज यू कैन सी मैं जस्ट एक टाइटल डाल देता हूँ एंड ये टाइटल सब जगह पे आएगा. हर जितने भी पेजेस रहेंगे आपके तो हर पेजेस पे ये टाइटल आ जाएगा. ये देखो SY/FIT SY/FIT. Yes. So this is how we can use header. Similarly if you want to add footer तो footer पे क्लिक करो, वहाँ पे भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आएंगे. बट बेसिकली फूटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो कोई ऑथर है या कुछ रेफरेंस देना है या पेज नंबर डालना है, तो फॉर दैट रीज़न वी यूज़ दिस फूटर. सो नाउ यू कैन सी. चलो यहाँ पे मैं मेरा नाम टाइप कर देता हूँ आशीष. ओके. एंड ये मैंने निकाल दिया एंड पेज नंबर भी यहाँ पे इंसर्ट किया है. तो अपने आप ये पेज नंबर सब पेजेस पे आ जाएगा. तो एज यू कैन सी दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज. ओके. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ यू कैन सी नेम इज़ देयर एंड पेज नंबर 2. ओके. देन सिमिलरली थर्ड पेज पे आप देखो, ये देखो नेम है एंड पेज 3. सो दिस इज़ हाउ वी कैन इंसर्ट पेज अल्सो अलॉन्ग विद द फूटर. सो एडिशनल आपको पेज नंबर जो है वो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि पेज नंबर अगर आपको चाहिए एडिशनल तो आपको कहाँ पे चाहिए, टॉप ऑफ द पेज चाहिए या बॉटम ऑफ द पेज चाहिए या पेज मार्जिन्स पे चाहिए, करंट पोजीशन जो है आपका वहाँ पे आपको चाहिए. सो दिस इज इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड यू कैन ऐड द पेज नंबर. ओके. सो टाइटल या बॉटम में कुछ अगर इंफॉर्मेशन ऐड करना है या पेज नंबर ऐड करना है तो वी यूज दिस पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज नोन एज अ हेडर एंड फुटर ग्रुप. ओके. एंड नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट दैट इज अबाउट से सिम्बॉल्स भी है यहाँ पे. एंड उसके पहले सम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स दैट इज टेक्स्ट वाला ग्रुप है यहाँ पे. सो जस्ट आई विल शो यू क्विकली दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ये टेक्स्ट वाला ग्रुप क्या है. सो इफ़ आई वांट टू ऐड सम टेक्स्ट बॉक्स तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है वो आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिए उन टेम्पलेट्स को भी आप डायरेक्टली सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो येस नाउ यू कैन सी. एंड इसके अंदर फिर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है. इसके लिए भी फॉर्मेटिंग है, आपको शेप फिल करना है या फिर चेंजेस करने हैं कुछ कलर. ये देखो सेम जो पहले हमने देखा था वही सब चीज़ है, क्योंकि ये सब शेप्स ही है. तो इनके लिए आप कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस आप कर सकते हो. ये देखो है ना. तो दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो भी आज टैब हम देख रहे हैं ना इंसर्ट वाला, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यूअर क्रिएटिविटी. आपको कैसे क्रिएट करना है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग विल डिसाइड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट. ओके.
सो जस्ट इफ़ आई टाइप पर्टिकुलर वर्ड, सपोज मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं मेरा नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे यहाँ पे वर्ड आर्ट पे जाके चेंजेस करने हैं मुझे, मतलब ये जो वर्ड है ये थोड़ा स्मार्ट वे में कुछ अलग आर्ट में मुझे प्रेजेंट करना है। सो नाउ आई कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर पार्ट, येस। सो ओके पे क्लिक करूँगा तो नाउ यू कैन सी, तो अलग अलग यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स आर अवेलेबल। सो वॉट एवर स्टाइल्स यू वांट, ये देख सकते हो आप, ये देखो अलग अलग चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू विल बी गेटिंग, ये देखो जो भी आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो आर्ट, ठीक है। अब इसका हर जगह पे तो हम लोग यूज़ करते नहीं हैं। जस्ट द थिंग इज़ कुछ हेडिंग या कुछ इम्पोर्टेंट थिंग अगर आपको शो करना है, एंड इफ़ यू वांट दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन nicely place on your document, then only we use this particular smart art or word art, okay। सो अगेन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन, ड्रॉप कैप एंड क्विक पार्ट्स जो है वो तो आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते दोनों, ये आपको सिलेबस में भी दिया नहीं है, एंड बेसिकली हम लोग इसको यूज़ भी नहीं करते। आज भी जितने भी चीज़ें दिखाए तो हर चीज़ें हम लोग एक साथ एक डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं करते। जब जैसे रिक्वायरमेंट होगा उतने ही डॉक्यूमेंट्स पे उतने ही फीचर्स आपको यूज़ करने हैं। अननेसेसरी डोंट बी ग्रीडी दैट कि अननेसेसरी जितने भी फीचर्स आपको मैं सिखा रहा हूँ वो सब एक पेज पे आप यूज़ करो, तो इट विल बी अगेन कि आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आप एक ही जगह पे डाल दोगे तो वो प्रॉपरली नहीं दिखेगा। बी सिंपल, बट यस जहाँ पे आपको ज़रूरत रहेगा, जहाँ पे इफ़ यू फील दैट this particular part should be created attractively, then only you should go for this particular thing. If requirement is there, then only you should use that part, otherwise no need to use those particular things. So text में जस्ट ये दो जो चीज़ें हैं, टेक्स्ट बॉक्स एंड वर्ड आर्ट, इतने ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्विक पार्ट, सिग्नेचर लाइन, देन ये तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बेसिकली ऑफिस वर्क के लिए होता है। लास्ट वन दैट इज़ अबाउट द सिम्बल्स, तो इक्वेशंस के कुछ सिम्बल्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो यू कैन just create and use that particular thing। just I will go to the symbol वाला part, sorry equations। तो ये देखो मल्टीपल जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन टाइप दोज पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि इनको टाइप करना ना मुश्किल होता है। नॉर्मल अगर आप टाइप करने जाओगे ना तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस वे में अगर आपको टाइप करना है, कोई एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली टाइप करना है एंड उसमें फिर कुछ चेंजेस करने हैं, तो बाय यूजिंग दैट पार्ट यू कैन इंसर्ट द इक्वेशंस डायरेक्टली। इवन सम ऑफ द सिंबल्स के बारे में अगर आप देखोगे तो सिंबल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आप राइटिंग करते वक्त तो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये सिंबल्स जो है वो आप वर्ड पे कैसे, कंप्यूटर के थ्रू कैसे ये करोगे। सो मल्टीपल सिंबल्स दे हैव गिवन, यस आई नो लेक्चर का लिंक आ गया, जस्ट अभी फिनिश कर रहा हूँ, ये इंसर्ट रिव्यू में अपना फिनिश हो जाएगा। सो मल्टीपल सिंबल्स दे हैव गिवन, सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स यू कैन डायरेक्टली ऐड। इवन इफ आई शो यू मोर सिंबल्स पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट सम ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स। सो वॉट एवर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स you want, those particular characters are there here, so directly you can go to this particular tab and whatever symbol you want to add, that symbol you just need to check and you need to just click it, okay। so this is all about your insert ribbon। I know थोड़ा सा insert ribbon में आज थोड़ा लैपटॉप के इशू के कारण कंटिन्यूएशन में प्रॉपरली हुआ नहीं, बट स्टिल आई होप सो जो इम्पोर्टेंट मटेरियल था फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ इंसर्ट में पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, हेडर फुटर ग्रुप एंड सिंबल ग्रुप, यही चार पांच चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये चार पांच चीज़ें जो भी है वो समझे रहेंगे, ठीक है। सो जस्ट लेट मी टेक द अटेंडेंस।
Deepa, what is your roll number, Deepa? Yes, Deepa Dubey. Okay, 7017. चलो थैंक यू गाइज. सबका अटेंडेंस लगा दिया बच्चों, टेंशन मत लो.